So are you able to see the presentation? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. I will now make it full screen and then hide it. So the topic of the presentation is sustainable development. And before starting the lecture, let me give me my brief introduction. Let me introduce myself. My name is Dr. Arshad Hussain, and I am working as an associate professor in civil engineering in Aligarh Muslim University. And I'm also overseeing the work of the program coordinator of the National Service Scheme unit of the Aligarh Muslim University. My field of specialization, environmental studies and engineering. And today I'll be discussing with you this on this important topic of sustainable development. So before trying to understand what is the meaning of sustainable development is and what is the importance of sustainable development, let's try to first correlate the importance of uh, environmental consciousness, creating rather awareness about environmental issues so that the educated people, the learned people uh, are able to understand these issues, what problems uh, up in the environment are being caused, so that they are having an effect on the human beings, on our life, on our existence, on our health. So, for this aspect, sustainability is a very important term. So, we are moving in a world which is having a vision of achieving a sustainable world by the year 2060. So, according to the UN Environment Program, there should be a change in the human behavior, a shift in the human attitudes towards achieving a better environment, which can lead all of us to a better future on this planet Earth by the year 2060. Now, the question comes to the mind that is it a story or is it real? Or it is possible that we can achieve this sustainable world by the year 2060, because now we are living in 2024 and 2060 is not far off from us. Only a few years are left. So, is it possible for us to get rid of all the pollution that is taking place, that is existing all around us, in air, in water, in soil, in food, in all ecosystem components of planet Earth that on which we live? So certainly it is possible, but it is not easy. It can be brought about by concentrated efforts on the part of the citizens of this planet Earth, and we call ourselves as the global citizens, because when we talk about the environmental issues and the related matters, the boundaries which divides the world into different nations and countries become meaningless, because all the pollution that is being caused is affecting the human population throughout the world, around the globe. So that is why we talk ourselves to be the responsible global citizens of this world, and our behavior, the change, the support of the NGOs, the support of the various governments of the different countries can bring about this change and make this world sustainable. So the meaning of the term sustainability is given at the bottom of the slide. It is the capacity of the Earth's natural systems and human cultural systems to survive, to flourish, and adapt to the very long-term future. So since I have come to know that this lecture I am giving in the faculty induction program, and that too in which the participants belong to the different subjects, not only from science or engineering background, not only from medicine background, but also from humanities, social science, arts, etc., etc. So I will try to be very much simple and lucid in my talk and my presentation, so that all of you are able to understand what is the meaning of these
different terms that I'll be discussing with you, and what is the importance of achieving sustainability. So to start with, we will start with the three basic principles of sustainability, in which we are following two basic concepts. On the right hand side, you can see that natural capital consisting of the resources available on the earth, that is air, water, soil, energy, and minerals, of which solar energy, the sun, is the major source of energy. These are called the resources. And on the bottom side, you can see services, that is how to control population, human population. What is the importance of nutrients, biogeochemical cycles, and their recycling on earth? How to control the change in the climate that is taking place, how to control the pollution, how to treat the waste. It may be solid waste or it may be wastewater, how to conserve the biodiversity, and how to control the growth of pests and disease causing pathogens or microorganisms. So together, these resources and services combine together to form a natural capital. And this natural capital is very, very important to us, because in concept one, we study the nature has sustained itself for billions of years by using these natural resources that are available with us. And on other hand, our lives and economies depend on the energy from the sun and on the natural resources. So both ways, we are depending on the natural capital for our growth and survival. Now, what is environment? Environment is everything that is around us. इसको हिंदी में हम पर्यावरण और उर्दू में माहौलियात कहते हैं. तो हर वो चीज जो हमारे चारों तरफ मौजूद है वो एनवायरनमेंट कहलाती है. And what is environmental science? It is an interdisciplinary science in which we require information and ideas from different fields of study, including natural sciences, some subjects from the social sciences, and others from the humanities. So you can get a holistic view of the knowledge of various subjects, which is necessary for understanding the concepts of environmental science and studies. For example, from science background, biology, ecology, chemistry and physics, geology. From social sciences, knowledge of geography, anthropology, demography and economics, and political science, philosophy, and religion and ethics. So all these amalgamation of the knowledge of all these subjects becomes important to understand the concepts of environmental science and studies. Then what do we learn in the environmental science? We learn how the environment affects us, how the nature works, and how we affect the environment. Now, when we are affecting the environment negatively, how can we live or change our habits, change our behavior? How do we learn to live more sustainably? That is the topic of discussion today. How to deal with the environmental problems. So nature's survival strategies follow these three basic principles of sustainability that we are talking about. Number one, you can see the reliance on the solar energy. The solar energy, or the energy from the sun, is considered to be the basic source of energy, or you can say basic source on which all other forms of energy depend, because all of us have studied about the principle of conservation of energy. What is that? Energy can neither be created nor destroyed, but it can be transformed. It can be transformed from one form into another form for human use, for human survival, for human existence, for making life better for us. And we will be discussing various examples of this in the subsequent slides. So, what do the sunlight does for us? The photosynthesis process that is taking place in the leaves of the plants or the trees, the plants synthesize the food, and all the food grains, all the vegetables, all the fruits, all the eatables rather,
we are growing in these trees and these plants. So nature has provided these trees and plants for multiple purposes. The most important being photosynthesis, which not only synthesizes food for us, but at the same time releases oxygen gas as a byproduct, which is very essential to make the environment pristine, to reduce the air pollution. More and more oxygen being provided to the environment through the trees. So the trees are called, the forests are called the lungs of the environment. Then when we talk about the biodiversity conservation, it is also important for overall environmental protection. Why? Because every species existing on earth, these are interdependent on each other from the food criteria. There is a food chain and food web. One species being dependent on the other species, and the number of each species and their food habits will result in uh, either making the availability of food and the resources to all the living beings, or if one species outnumber the other species, there might be the overburden on the resources, which may result in the food shortage or food crisis. So every species having an equal importance in the biodiversity, and we know that many animal species, bird species, even microorganisms that were existing before have now completely become extinct. And there is a danger of extinction on some other species, for which we undertake protection or conservation work. Like you must have heard about Project Tiger, in which the government has made various wildlife sanctuaries for the protection of species of tigers. Similarly, time immemorial, before people talk about dinosaurs and mammoths making rounds on the surface of the earth, now have completely become extinct. You must have seen the films and the books being written about them. But we do not want any living species which is in the endangered list to become extinct. So we have to conserve the biodiversity. And chemical cycling, what we call as the recycling of the biogeochemical cycles, that is circulation of chemicals from the environment to the organisms and back to the environment. This cycle continuously goes on. It is called the nutrient cycling. There are several cycles taking place on the earth, to name a few: water cycle, carbon cycle, nitrogen cycle, sulfur cycle, and so on. So we all depend, our survival and existence depend on these nutrient cycles. So in this slide, you can see the pictures of the dinosaurs that I was talking about, which disappeared about 65 million years ago. And if we study the Charles Darwin theory of evolution, we come to know that the first simple cells appeared on the earth about 3.5 billion years ago. The first multicellular life appeared about 1 billion years ago, and first major land plants appeared about 475 million years ago. Then, due to some reason for which different theories have been propounded, some say that it was due to the ice age that happened on the earth, due to which dinosaurs became extinct. Some say some asteroid or meteor have stricken on the surface of the earth, resulting in the extinction of these dinosaurs, whatever it may be. But Homo sapiens, or the early man, arrived on the earth about some 200,000 years ago. So from simple cell to Homo sapiens, that is the story of human evolution. And in this slide, we have to sum up the three basic principles of sustainability that we have been talking about in the last few minutes: solar energy, biodiversity, and chemical cycling. Each of these three having their own role and importance in the sustainability. So up till now, to sum up what we have learned, the slides we have seen till now, that sustainability has main components, that is natural capital, which consists of natural resources and natural services. We, the human beings, are responsible for degrading or polluting this natural capital, and to improve its quality, to make it
pristine again, we have to find scientific and engineering solutions which is required for maintaining, for upholding environmental sustainability. So here you can see that natural capital is a combination of natural resources and natural services. It's been shown in the form of a slide. Air is a natural resource, but due to human activities, the air is being polluted. And we are not talking about the natural sources of air pollution here. Why? Because every ecosystem component has been provided a natural tendency by self-purification process. If there is a single episode of air pollution being released from any source, the air purifies itself by self-purification process. But the problem starts, or the problem grows, when large scale air pollution is taking place from multiple sources and for more duration of time. The duration of time also goes on increasing. So we have to work for this air purification. Then we have to work for the climate change control that is taking place. We have to take care of the ultraviolet protection, which is being provided by the nature in the stratosphere layer of the atmosphere, in the form of ozone layer, which is protecting us from the harmful ultraviolet rays of the coming with the sunlight. Then water needs to be purified, for which water treatment is done. Whatever wastewater is coming, dumping into the water sources has to be cleaned in a treatment plant and purified. Then the non-renewable minerals have to be taken out, and from these minerals we make the metals also in the metallurgical industries. Then we have to keep the soil quality also good, which is becoming polluted because of indiscriminate use of chemical fertilizers and pesticides. And that is happening for the last several decades now in our country, India, ever since the call for green revolution, or Harit, what we call as the Harit Kranti, has been given. Without having told the farmers, most of them doesn't have an awareness about it. What should be the quantity, what should be the measure of the fertilizers and pesticides to be used for increasing the agricultural production. But having said that, the indiscriminate use has resulted in increasing concentration of these chemicals in the soil, polluting it to a level that when the rainfall takes place, these chemicals leach out in the rainwater and ultimately contaminates surface water sources like rivers, ponds, lakes, and now in the last 2 or 3 decades, I would say, started contaminating our groundwater resources also, which was not happening earlier. So these micropollutants finding their way into groundwater is a major cause of concern for the environmental scientists, engineers, as well as the government agencies, whose responsibility is to deliver clean, hygienic drinking water to the public. Then pollution on the land area also taking place. How we have to take care of that, how we can conserve the biodiversity, what we can do to control human population. All these issues are a part of our concentrated efforts to achieve sustainable development. As far as this nutrient cycling is concerned, it is something that needs in case of agricultural production, because the plants, the agricultural crops, they require two basic nutrients. Even in case of living beings, including humans, there are several macronutrients and micronutrients which are required for the growth and development. So for plants, we require two major macronutrients. One is nitrogen and the other one is phosphorus. So if there is a lack of these nutrients in the soil, obviously we have to provide it through some artificial means that can be done with the help of
urea fertilizer for nitrogen, and DAP, diammonium phosphate for, say, phosphorus. But there can be alternatives. There can be sustainable alternatives for this. We can use normal compost or vermicompost or what we call as the biofertilizers or biocompost in place of these chemical fertilizers, and they will provide the same nutrients required for the growth of plants, but they will not pollute the environment, they will not pollute the soil, and in this way are sustainable. So this is just one example to show. All of us know that nitrogen from the air moves to the soil through a process called fixation of nitrogen. And there are certain bacteria in the roots of certain types of plants, which we call as the leguminous plants, like Rhizobium, Pseudomonas, etc., which converts the nitrogen from the air into nitrites and then into nitrates, which provide necessary nitrogen for the growth of plants. And finally, it goes back again into the air in the form of nitrogen. So this cycle continuously goes on in nature, which is essential for maintaining the level of nitrogen in the air. That is the major ingredient. 78% to 79% nitrogen is there in the air, and 20 to 21% is the oxygen. That is an essential requirement for respiration process to go on in all the living beings. And when we say all the living beings, it includes animals and as well as plants. So what is happening is natural capital degradation is taking place. So here one example is shown in this slide, that you must have heard about rainforests in Amazon basin in Brazil, in South America. So due to various reasons, more and more land required for creating habitation for human beings, for constructing houses, or for infrastructure development, construction of roads, construction of bridges, railway lines, airports, shopping malls, and so on. The area is needed for which forests are being cutting down. Then this wood from the trees is being used as a raw material in several industries, like paper industry, like furniture industry, like other industries. And this is making the forest deforestation taking place more quickly. So our role as environmental scientists and people who want to create awareness, want to achieve sustainability, is to avoid the natural capital degradation in any form that is taking place on the earth. So if we start talking about the causes of the environmental problems now, you can see the various problems. The major problem on earth, vast growing human population. If we talk about our own country, now we have become the most populous country in the world, leaving behind China. Then the unsustainable resources that we are using. Here the example of a big car is shown, which uses a fossil fuel, for example, large quantity of fossil fuel, and releases oxides of carbon, sulfur, and other particulate matter into the air, thereby causing environmental problem, that is air pollution. Then poverty is also considered to be a mother of all evils, even contributing a great deal in causing the environmental problems. So in developed countries where their affluence is there, poverty is not there, they are using the engineered systems, they are using the techniques and methods to reduce pollution and to arrive at the sustainable solutions. So for poor nations, for less wealthy nations, arranging the money for finding and applying all these environmental solutions is a major challenge. Then not including the environmental costs of economic goods and services in their marketplaces is another example of how the problems are existing that we have to solve.
and trying to manage the simply or simplify nature with too little knowledge. For that, we are creating awareness. The lecture that I am giving to you, the presentation I am making before you, the purpose is to create awareness in this faculty induction program about to create environmental consciousness, to make you know about these issues, how these issues are affecting us. And when you will become aware, you will be making more people aware, which are connected, who are connected with you. In this way, this message of environmental awareness and creating or finding sustainable solutions will spread by the word of mouth. That is the purpose. So we have to find a path to sustainability, protect the natural capital, avoid or prevent the natural capital degradation taking place, finding solutions which are not easy, but not even impossible. They are possible. And for example, trade-offs. We are planting trees which have commercial value. For example, teak plantation. So by planting teak trees, we are not only providing oxygen to the environment, working for a sustainability, but at the same time, after a few years when the trees grow up, you can cut these trees down and sell them and get money for it. And again plant new trees in their place, which will serve the purpose of providing oxygen to the environment. So in this path to sustainability, every single effort और इंडिविजुअल एफर्ट मैटर्स. जिसे आप कहते हैं कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है. हम ये नहीं सोच सकते कि साहब एक अकेला चना क्या भाड़ फोड़ लेगा, एक हमारा अकेले करने से क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है. छोटे से छोटे एफर्ट भी जो है वो सस्टेनेबिलिटी अचीव करने के लिए कंट्रीब्यूट करती है, जिसके अंदर हम साइंस की जो नॉलेज है उसको इस्तेमाल करते हैं, सोशल साइंस की नॉलेज को भी इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं. तो अगर हम बात करें, अभी हम बात करें अर्थ की रिसोर्सेज की. अर्थ की रिसोर्स क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रही है, जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है. जैसे हमने बात की सूरज की रोशनी, या जमीन के नीचे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसका हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली उसको ऑयल रिफाइनरी में ले जाके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन वगैरह वगैरह ये सब मिलता है, जिसका इस्तेमाल हम अलग अलग जगहों पर करते हैं. तो ये एक तरह का रिसोर्स है. ये कहलाता है परपेचुअल रिसोर्स. परपेचुअल का मतलब ये है कि डायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन सूरज से हमारे पास पहुंच रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेज, जैसे सोलर एनर्जी. दैट इज कॉल्ड द परपेचुअल रिसोर्स. फिर इन रिसोर्सेज में कुछ तो ऐसे हैं जो कि अबंडेंटली अवेलेबल ऑन नेचर है, जो 100 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक या मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इसकी कोई कमी नहीं. जैसे सूरज की रोशनी है, हवा है, मिट्टी है, घास है, ये हमेशा अवेलेबल रहेगी. लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जैसे नॉन रिन्यूएबल हैं. जैसे ऑयल है, ऑयल की रिजर्व्स हैं लिमिटेड. उसके अलावा मेटल ओर्स हैं, ये भी लिमिटेड रिजर्व्स हैं. तो हमें फोकस करना है रिन्यूएबल सोर्सेज के इस्तेमाल पे, जो कि अबंडेंटली अवेलेबल भी हैं, और इनको यूज करने से एनवायरनमेंट को में एयर पोल्यूशन भी नहीं हो रहा. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और हाइड्रो पावर. So using all these methods of energy to produce to fulfill the requirement of energy on earth, we are replacing the energy production by conventional method. और conventional method क्या है? थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जला के गर्म करके हम जो पानी को गर्म करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन इस प्रोसेस में कोयले को जब हम जलाते हैं तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड फ्लाई एश, दिस गोज इनटू द एयर, सो इट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट. और एक कोयले के रिजर्व्स भी लिमिटेड है, खत्म हो जाएंगे एक दिन, लेकिन ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है खत्म नहीं होंगे. इसी तरह ऑयल भी है, बहुत सारे ऑयल बेस्ड प्लांट्स होते हैं. ऑयल का इस्तेमाल आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी कर रहे हैं. ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए भी कर रहे हैं. और तीसरा इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन. तो इन सब जगहों पर हम इंजीनियर्ड सिस्टम्स का इस्तेमाल करके, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके एयर पोल्यूशन को घटा सकते हैं. तो दीज आर कॉल्ड द सस्टेनेबल सॉल्यूशन. तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बात, रिसोर्सेज की बात यहाँ पर हो रही है.
जो भी हमने की। ये देखिए स्लाइड में एक पूरा एक होलिस्टिक व्यू आ गया कि अभी आप समाप्त कर सकते हैं अब तक आपने क्या स्टडी किया इस लेक्चर में। आज जो हम बता रहे हैं आपको, रिसोर्सेज जो अवेलेबल है नेचुरल कैपिटल का पार्ट है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, परपेचुअल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। परपेचुअल रिसोर्सेज में डायरेक्ट सोलर एनर्जी और विंड्स, टाइड्स एंड फ्लोइंग वाटर। नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल फ्यूल की बात की मैंने, मेटेलिक मिनरल्स की बात की और नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात की। फिर दूसरा है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो अबंडेंटली अवेलेबल इन नेचर हैं, जिसको कह रहे हैं फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, फ्रेश फर्टाइल सॉइल, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसको बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं, फ्लोरा एंड फौना कह रहे हैं। ये सब रिसोर्सेज का पार्ट। अब सोल्यूशंस क्या है? हम कह रहे हैं पोल्यूशन हो रहा है, पानी में पोल्यूशन हो रहा है, एयर में पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल में हो रहा है, हर तरफ ऑल राउंड पोल्यूशन एनवायरनमेंट में हो रहा है। बट इन ऑर्डर टू अचीव सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ऐसा डेवलपमेंट जो कि हम फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को, फ्यूचर के नीड्स को पूरा कर सकें बिना प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हुए। यानी कि अगर हम अपने कंट्री का जीडीपी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, तो हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे, उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन जब इंडस्ट्रीज लगेगी तो उसके साथ पोल्यूशन होगा, तो हम इंडस्ट्रीज भी लगाएं, साथ ही साथ ऐसे इंजीनियर सिस्टम्स और मेथड्स अडॉप्ट करें कि पोल्यूशन होने से कम हो जाए या खत्म हो जाए। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ऐसा डेवलपमेंट जिसको लंबे वक्त तक सस्टेन किया जा सके, कंटिन्यू किया जा सके बिना एनवायरनमेंट को खराब किए हुए। तो सॉल्यूशंस मैंने जैसे बताया आपको, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन मुश्किल है, आसान नहीं है। एक सोल्यूशन जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत कॉमन टर्म है, आप स्कूल में बच्चे को भी पढ़ाई जाती है, आप लोग ने भी इसको देखा होगा, द 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो इन तीनों लफ्जों की बहुत बड़ी अहमियत है अगर हम कह रहे हैं कि साहब हम सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं। रीयूज का मतलब ये है कि जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, आप बाजार से खाने का सामान खरीद के लाते हैं, वो डिब्बा बंद सामान होता है, प्लास्टिक के कंटेनर्स और जार्स में, ग्लास की बॉटल्स में आता है, कोल्ड ड्रिंक आती है टिन के कैंस में आती है। जब इन चीजों को आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो सॉलिड वेस्ट का हिस्सा बन जाती है। तो अब जो है बड़े शहरों में ये सॉलिड वेस्ट का पहाड़ जो है वो क्रिएट हो गया हर शहर में, जिसको डिस्पोज करना, जिसको मैनेज करना एक बहुत मुश्किल काम है। आपके ने भी इसके बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर दिखाया हुआ ये बच्चा खड़ा हुआ है, ये सारी बॉटल्स जो अलग अलग चीजों के लिए मार्केट में मिलती है, इन सबको स्टोर किया गया साफ करके, और ये कंपनीज खरीद लेती है इनको, दोबारा से साफ करके रीलेबलिंग करके इसको फिर से इस्तेमाल कर लेती है। इसका मतलब जो सॉलिड वेस्ट क्रिएट हो गया था इसकी वजह से, उसको आपने न सिर्फ कम कर दिया और बल्कि इनको रीयूज करके जो इसको बनाने के लिए जो पैसा खर्च किया था वो भी आपने बचा लिया। तो यू आर सेविंग मनी एंड कंजर्विंग एनवायरमेंट एट द सेम टाइम। दैट इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रीयूजिंग मटेरियल्स। रिसाइकलिंग में हम किसी भी मटेरियल को रिसाइकिल करके कोई दूसरे यूजफुल आर्टिकल्स बना लेते हैं। जैसे रबर है, रबर के चप्पल हम यूज करते हैं, रबर के बहुत टायर्स हम यूज करते हैं। जब उसकी यूजफुल लाइफ पूरी हो जाती है उसको फेंक देते हैं, इसको रिसाइकिल करके हम यूजफुल आर्टिकल कोई बना लें। प्लास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक्स को हम फेंक देते हैं, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होती है चीजें। अगर आप गड्ढा खोद के गाड़ेंगे प्लास्टिक को तो 100 साल बाद निकालेंगे वैसा ही निकलेगा। बैक्टीरिया कैनॉट बायोडिग्रेड, कैनॉट डिकम्पोज प्लास्टिक्स। So decomposing plastic is a big challenge. So if you recycle them, then it is solving the problem of reduction of volume of solid waste again, and you are saving some material from which useful articles can be made, and in terms of that we can save some money also. लेकिन प्लास्टिक मटेरियल के साथ एक प्रॉब्लम है कि जितनी बार आप इसको रिसाइकिल करेंगे उतनी बार क्वालिटी जो है इसकी थोड़ी इंफीरियर होती जाती, घटती जाती, और घटने के साथ साथ उस जो कमी आ रही है उसकी क्वालिटी में, उसको छुपाने के लिए इसमें कलर का इस्तेमाल हुई, वी यूज डाइज फॉर इट, एंड मेनी टाइम्स दीज डाइज आर केमिकल डाइज। तो अगेन if we are trying to solve one problem but creating another is not going to serve the purpose of creating sustainability. So as scientists, as educated people, we should
study, we should consider that whatever solutions we are finding, these solutions should not create more problems for the environment rather than solving them. तो एक लिमिटेड वे में जो है रिसाइकलिंग अलाउड है, इसको हम करते हैं और जिसकी मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब अलग अलग कंट्रीज की बात अगर हम करें, हाउ डू द कंट्रीज डिफर इन द लेवल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। आप कहें कि सब चाइना इंडिया के मुकाबले में ज्यादा सस्टेनेबल है और इंडिया कम सस्टेनेबल है, इसका मतलब क्या है? एंड अगर हम कम है सस्टेनेबिलिटी में तो हम अपनी सस्टेनेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपनी अनसस्टेनेबिलिटी को कैसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब वही जो मैंने आपको बताया, जीडीपी में ग्रोथ हम करेंगे, उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे और इंडस्ट्रीज लगाएंगे, और जहां भी हम ये डेवलपमेंट का काम करेंगे और इंडस्ट्री लगाएंगे या कोई सड़क बनाएंगे या एयरपोर्ट बनाएंगे तो वहां पर एयर पोल्यूशन होगा, एनवायरनमेंट पर बर्डन पड़ेगा। So how we measure the economic growth of any country? It is done in terms of gross domestic product, जिसको आप GDP बोलते हैं। So what is GDP? GDP is the annual market value of all goods and services provided or produced by all businesses, including foreign and domestic, operating within a country. So we calculate the per capita GDP, that is the measure of the economic development per person. तो जैसे पर कैपिटा इनकम निकालते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी बढ़ गई 5 साल में या 10 साल में, इससे पता चले कि हमारे यहाँ जो है वो गरीबी की रेखा से हम ऊपर आ गए और हमारी सस्टेनेबिलिटी कितनी कम हुई है ज्यादा हुई, उसके साथ साथ हमें देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी बात है, जरूरी है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट is necessary to raise the living standards of people. We can consider some examples here of more developed countries, like the countries of North America, including Canada, USA, then in Australia, New Zealand, Japan, and most of Europe. If we talk about less developed countries, many countries in Africa, Asia, and Latin America. So here on this world map, you can see the countries have been divided according to the gross national income per capita. So you can see that these are the rich countries having a high income more than $10,000. Then there are upper middle income countries, then lower middle income countries, and low income countries. So if we look at the global outlook, what are the trends on the global level? Here a comparison is given in this world chart regarding the different parameters like population rate of growth, wealth and income, resource use and pollution and waste, comparison between developed and developing countries. So you see that while population is very high in developing countries, comprising about 82% of the world's population, wealth and income, a majority component is with the developed countries. What is the meaning of this? Developed countries comprising only 18% population, but having about 85% of the world's wealth. And on the other hand, developing countries comprising of 82% of the world's population, but having only 15% of the total wealth. So that shows the disparity. Even in the resource use, developing countries are far ahead, almost 90% resource use as compared to 10 or 12% for the developing nations. As far as the pollution and waste is considered, obviously, the developed countries are producing much more waste, polluting the natural capital, degrading the natural capital much more as compared to the developing nations. So when we have to find the solutions, we have to consider the ecological footprints of the various human activities on the individual basis, then on community basis, on city basis, and country wise, how it is affecting the global climate, how it is affecting the global pollution in air, water, soil, and other ecosystem component parameters. For example,
as our ecological footprints grow, we are depleting and degrading more and more of Earth's natural capital. तो जो मैं ये आपको ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ, इस लेक्चर का भी एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट है। क्यों? क्योंकि मैं एक लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस लैपटॉप में प्लास्टिक्स मटेरियल यूज हुए हैं, इसमें सेमीकंडक्टर यूज हुआ है, इसमें मेटल्स यूज हुए हैं, ग्लास यूज हुआ है। और आप लोग इसको अपने मोबाइल्स पर देख रहे हैं या लैपटॉप पर देख रहे हैं, उसमें भी जो है कुछ ना कुछ मटेरियल यूज हुआ है। इन मटेरियल्स को, इन डिवाइसेस को बनाने के लिए जो एनर्जी का इस्तेमाल किया गया होगा, उसमें एनवायरनमेंट कुछ पोल्यूट हुआ होगा, और कुछ मटेरियल रिफाइन किए गए होंगे मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में, वहां भी कुछ ना कुछ जो है एनवायरनमेंट पोल्यूट हुआ होगा। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी हम सुबह से शाम तक ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है जिसका कुछ ना कुछ इकोलॉजिकल और कार्बन फुटप्रिंट ना हो। तो हमें, अगर हम जब सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैसा है, और अगर हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो तो हमें इस फुटप्रिंट को घटाना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हम खास तौर से शहरों में हम अनसस्टेनेबली रह रहे हैं। वी आर नॉट फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन लेटर एंड स्पिरिट। तो एनवायरमेंट में डिग्रेडेशन हो रहा है। वी आर वेस्टिंग, डिप्लीटिंग एंड डिग्रेडिंग द अर्थ नेचुरल कैपिटल, एंड दिस हैपनिंग इज नाउ हैपनिंग एट एन एक्सेलरेटेड रेट, and this natural capital degradation is also taking place at a faster rate. So in this slide, you can see that how this degradation of the natural capital is taking place. Forests are cutting down, deforestation taking place, as a result which natural habitat for wildlife living in these forests is being decreased. Species are becoming extinct or are in the endangered category. Then the soil erosion taking place, the fertile soil converting itself into the barren land, the fertility of the soil is decreasing, more and more air pollution taking place, as a result of which rapid change in the climate visible throughout the world, due to which there is some excess rainfall at some places leading to problems like flash floods, and there are droughts leading to the problems in agriculture production. Similarly, the underground water, what we call as the aquifer, the depletion is taking place, water table going down fast because we are taking out more and replenishing less. And the ocean fisheries are also declining, dissolved oxygen level going down, endangering the life of fishes and other, say, water animals. Then whatever water is existing with us, especially the surface water source in rivers and lakes and ponds, it is becoming highly polluted, not only from the conventional pollutants, but there are some new pollutants which are finding their way into the water body. So if we talk about the sources of pollution, the types of pollution, we can basically divide it into two categories. One is called the point source and the other is the non-point source. The example of point source is that एक इंडस्ट्री में चिमनी लगी हुई है, वहां से धुआं निकल रहा है, तो एक पॉइंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन ही कहलाता है। और नॉन पॉइंट सोर्स क्या है? खेतों में पेस्टिसाइड जो है वो छिड़क रहे हैं, तो हवा के साथ जो है वो हवा में उड़ के वो दूर दूर तक फैल रहे हैं मिक्स होके, ये नॉन पॉइंट सोर्स का एग्जांपल है। इसी तरह पॉल्यूटेंट्स को हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में बांटते हैं। बायोडिग्रेडेबल वो है जिसको बैक्टीरिया डिकम्पोज करके एनवायरमेंट फ्रेंडली फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और इसका डिस्पोजल आसान है। और उसके बरक्स जो नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर हम बैक्टीरिया की मदद से इसको डिग्रेड नहीं कर सकते, और जब नहीं कर सकते तो इसका डिस्पोजल एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि साहब अलग अलग किस्म के इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से वेस्ट वाटर जिसके अंदर जो है कुछ टॉक्सिन्स, जहरीले पदार्थ भी मौजूद हैं, या कुछ माइक्रो पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि अब सरफेस और ग्राउंड वाटर सोर्सेज में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। ये देखिए यहाँ पर ये चिमनी की जो बात अभी हमने की थी, इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि चिमनी से धुआं निकल रहा है इंडस्ट्री से, ये पॉइंट सोर्स एयर पोल्यूशन का कहलाता है। और नॉन पॉइंट सोर्स में देख रहे हैं कि पानी
कोई नदी या तालाब का पानी हो सकता है जिसमें ये प्लास्टिक की बॉटल्स, थर्मोकॉल, प्लास्टिक, ये सब तैरता हुआ नजर आ रहा है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन. Now, as far as the unwanted effects of pollution are concerned, or damage to the human health, if negative impacts on the human health, that we have to consider. So, disruption or degradation of the life support system for animals, damage to the wildlife, damage to the human health and property, creating nuisances like noise pollution, which is becoming a major problem nowadays, present of unpleasant smells, tastes in water. So here in this slide, you can see the overall negative health effects of pollution. In the head, you can see that due to noise pollution, due to air pollution, problems like headache and fatigue is there. We are inhaling more and more air, which is having high concentration of air pollution. So it causes problems starting from simple cough, sneezing, then allergy in the inner linings of the lungs, inflammation of the major bronchus in the lungs, that is called bronchitis, then inflammation of the smaller parts of the lungs, alveoli, that is called alveolitis, and then severe problems like emphysema or pleuritis, and even lung cancer has been reported. Now, people talk about problems like gastroenteritis, nausea, skin irritation, waterborne disease when the people are uh, forced to drink water in which certain micropollutants are there, or waterborne diseases causing bacteria, virus, and protozoa helminths are there. But the cardiovascular disease being caused due to air pollution, this is something new. And why it is happening? That the particulate matter, the particle size of which is less than 2.5 microns in size. When it goes into our lungs, it goes into the alveoli and into each cell and tissue of our lungs. And the interface at which the blood takes the oxygen from the air and gives out the carbon dioxide takes place through hemoglobin in the blood in these alveoli or in these cells. So what is happening is during this interface, the particles from the air, the smaller ones, the size of which is less than 2.5 microns, that is finding their way into our lungs, and then through the blood, they are finding their way into our coronary arteries, the arteries that are responsible for bringing, supplying oxygen to our heart muscles. So what is happening is that due to the fat that we are eating, the cholesterol, LDL cholesterol combines with these uh, RSPM, respirable suspended particulate matter, and it clogs the coronary arteries, which is responsible for causing cardiovascular disease, starting with angina pectoris, heart pain, uh, looseness of breath, and finally heart attack, or even myocardial infarction, cognitive heart failure can take place. So this air pollution is rather reducing. If you talk to the doctors, they will tell you that in NCR region, National Capital Region of the city of Delhi and adjoining areas, Faridabad, Noida, Gurgaon, and even to the nearby towns like Ghaziabad and Kanpur, the air quality index in the months of winter goes sometimes to a level of about 1200 or up to 1500 air quality index has been reported. This is considered to be from severe to very severe category. And if a person is breathing in such an air continuously, it is equivalent to smoking 40 cigarettes a day. And the average lifespan of individuals is reducing from 2 to 5 years because of this. And the people whose lungs are more sensitive, they are more vulnerable, like small children, ladies, and elderly people. They are more affected by this type of pollution. So this is just an example to show. Then the cancer risk that I was talking about here, from the micropollutants that are present in not only in our surface water but groundwater also, like pesticides, heavy metals, pharmaceutical compounds, and radioactive materials. They are there in our groundwater now. Nobody is testing our groundwater.
before drinking or before cooking food in it. And because we have no access to no other source of water, so there is no. और आप ये मत सोचिए कि जो बाजार में पानी बिक रहा है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो अलग अलग नाम से बिस्लेरी, एक्वाफीना, किनले वगैरह वगैरह, ये जो है इन सब चीजों से बचा हुआ है नहीं। कुछ साल पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी हमारे पार्लियामेंट में। एक दिल्ली में एक एनजीओ है, सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट, उसकी सीईओ हैं डॉक्टर सुनीता नारायण। उन्होंने एक स्टडी की और एक रिपोर्ट दी कि जितनी कोला ब्रांड्स हमारे यहाँ मिल रही हैं भारत में, जैसे पेप्सी और कोक वगैरह, उसमें पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल्स परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है। तो हमारे माननीय सांसदों ने पार्लियामेंट में हमेशा की तरह हंगामा शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया कि साहब अरे विदेशी कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनी है और ये भारत में आके पैसा कमा रहे, फिर भी हमें जो है वो जहरीले पदार्थ पिला रही है, इनको बंद करिए, पाबंदी लगाइए। तो उन्होंने अगले दिन जो है व्हाइट पेपर जारी किया। ये उन्होंने कहा कि साहब कोक और पेप्सी मल्टीनेशनल कंपनी जरूर है, और इसमें जो कोक और पेप्सी बनाने के लिए बॉटलिंग प्लांट में जो कंसंट्रेट आता है वो यूएस से जरूर आता है, लेकिन ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि पानी जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है, जो मेजर कंपोनेंट है इस कोल्ड ड्रिंक का, वो हम अमेरिका से हवाई जहाज में भर के लाएं। तो पानी तो उसी देश का होता है जिस देश में ये बॉटलिंग हो रही है। तो अगर आपके कोला ब्रांड में पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल्स मौजूद हैं, तो वो इस वजह से है कि आपके भारत में ग्राउंड वाटर के अंदर ये मौजूद है, और दूसरे देशों में आप जाके चेक कर लीजिए, वहां कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम कोला पी लें, चाहे आप कोक पी लें, पेप्सी पी लें, चाहे आप बिस्लेरी पी लें या किनले, एक्वाफीना, कोई भी पानी जो है वो इन माइक्रो पोल्यूटेंट से फ्री नहीं है आज की डेट में। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? इज देयर एनी मेथड? द आरओ दैट वी आर यूजिंग, रिवर्स ऑस्मोसिस, is that a solution? Yes, it is. It is reducing. It can reduce these heavy metals, these pesticides, and other harmful chemicals to a particular extent, but it cannot 100% remove all these chemicals. There are several other techniques, which some of which are costly techniques. Even finding the concentration of heavy metals, we need a very high level research lab. For example, for heavy metals, we need an atomic absorption spectrometer, which is costing at least rupees 20 lakhs. Then for finding out how much pesticides are there, we need a gas chromatograph with mass spectroscopy techniques, again more than 30-40 lakhs of rupees. So it is not easy to detect. But even if we are detecting, how will we get a water, or we get a device from which we can remove, or we can treat the water to remove these? RO can remove it to 20 to 25%. The rest, the techniques are available in developed countries, but still not come to India. So providing clean, hygienic drinking water is a state subject. What is the meaning of a state subject? It is the responsibility of the government to provide clean, hygienic water to the human population. So our scientific agencies are coming up with the solutions, and the problem is that in our country the solution should be an economical solution to which the people belonging to the middle class or lower middle class can adopt to. Otherwise, if we have a device which is of rupees 1 lakh rupees cost, more than 50% of our population will not be able to afford it. So there is no benefit of having the device. Oh, yes, the rich people can use it, but what about the poor people? So all these issues are very, very important for us. So another important topic is achieve sustainability is over exploiting shared renewable resources. That is called the tragedy of the commons. That अलग अलग टाइप की जो प्रॉपर्टी है, रिसोर्स राइट्स हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, कॉमन प्रॉपर्टी जो सरकारी जमीन, ये सरकारी प्रॉपर्टी कहलाती है, और कुछ ऐसे होते हैं ओपन एक्सेस रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे पानी को अभी तक लोग ये समझते हैं कि साहब ये तो हमारी चीज है, अपने घर में जो है वो सबमर्सिबल पंप ऑन करके सो जाते हैं और पानी नाली में बहता रहता है। उन्हें अगर आप जगाएं और बेल बजा के, तो कहते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा पानी है, हमारी बिजली है, हम कर रहे हैं वेस्ट। तो उनको ये बताना चाहिए कि ये पानी जो है और बिजली दोनों, ये नेशनल प्रॉपर्टी है,
ये ग्लोबल प्रॉपर्टी है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है, ये आपका इस पर हक नहीं है। और आज आप इसको बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं, और इतना पोल्यूशन हो जाएगा कि फिर आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली एज द सिटीजन्स and try to find and adopt solutions to avoid this tragedy of commons. इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हमें ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने हैं जिन सॉल्यूशंस की मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, रादर क्रिएट ना करें। जैसे एयर पोल्यूशन की हमने बात की थी, इंडस्ट्रीज में एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस अब टेक्नोलॉजी मौजूद है, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर्स टू से बैग हाउस फिल्टर्स, वेंचुरी स्क्रबर्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। तो कुछ डिवाइस ऐसे हैं जो छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज में लगाने के लिए इस्तेमाल है, हालांकि उसकी एफिशिएंसी कम है। जैसे अगर मान लीजिए ईंटों का भट्टा है, वहां से बहुत ज्यादा काला धुआं निकलता हुआ आपने देखा होगा, उसमें कार्बन के ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत ज्यादा है। उसमें अगर आप ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर भी लगा देंगे, जो कि एक 5-7 हजार रुपए का आता है, तो 50 to 60% अगर उसकी एफिशिएंसी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर 10 भट्टों में हमने वो लगा दिया, तो आप काफी कंसिडरेबल अमाउंट में पॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है, कोई सीमेंट प्लांट है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, तो वहां पर आप जो है ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर काम नहीं करेगा। वहां पर हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी एफिशिएंसी 99.99% होगी। इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी, वो इसको अफोर्ड कर सकेगी बड़ी इंडस्ट्री। तो इसलिए हमें जुडिशियस यूज करना होता है, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद है, जिसमें अवेलेबिलिटी और कॉस्ट के और यूज के बीच में हमें एक बीच का रास्ता निकालना होता है। और इस ऑप्टिमाइजेशन के जरिए, इस म्यान के जरिए जो है हम सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो अब तक तकरीबन 15 मिनट बचे हैं, तो मैं अपनी बात को यहीं पर रोक रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डिस्कशन इस पे हो जाए। नाउ द लेक्चर इज ओपन फॉर डिस्कशन and I request you to please ask questions. Please सर अभी हाफ identify एन आवर yourself. है जी, सर, अच्छा अभी अभी आधा आओ। घंटा। तो आप आधा घंटा सर बाकी है। हाँ, आधा घंटा है, तो अभी डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो बताएं भाई, आप लोग जो है सवाल पूछे एक एक करके। हेलो सर। हाँ हाँ, अपना नाम बताएं पहले। सर मैं अशोक गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पीसी हम्म, कॉलेज आजमगढ़। जी जी। सर ये कह रहे हैं कि सर डेवलपमेंट और फिर ये तरीके से पोल्यूशन में, तो फिर इस तरीके से मेन विरोधाभास है, फिर हम लोग डेवलप कैसे कर पाएंगे इस तरीके से, अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर। नहीं नहीं, इसीलिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही विरोधाभास है। विरोधाभास इसीलिए है, जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है अशोक जी, कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम अपने डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते, और कोई भी देश अपने डेवलपमेंट को रोकना नहीं चाहता, इंडस्ट्रीज भी हमें लगानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी हमें करना है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हमें पर्यावरण भी बचाना है। तो इसको दोनों चीजों को साथ बाय साथ लेने का चलने का नाम ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो मैंने कहा ना, जो इंजीनियर्ड सिस्टम्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो दूसरी जो टेक्निक्स हैं, उसका इस्तेमाल करके हमें दोनों चीजों को साइड बाय साइड लेके चल रहे हैं। जो और जो अलग अलग कंट्रीज ने इस पर साइन किया हुआ है, भारत भी सिग्नेटरी है। जो कन्वेंशन हुआ है कोपेनहेगन समिट मान लीजिए, या दूसरी जो कन्वेंशन जो ट्रीटीज इंटरनेशनल, भारत भी एक जी जिम्मेदार जी। देश होने के नाते उसका सिग्नेटरी है। और हमने भी जो है वो, जैसे कार्बन इमिशंस की बात अगर मैं करूं, तो कार्बन इमिशंस को कम करने के लिए भारत ने अपने टारगेट सेट किए हैं कि 10 वर्ष में हम कितना कम करेंगे, 15 वर्ष में हम कितना कम करेंगे, 20 वर्ष में हम कितना कम करेंगे। तो इन टारगेट्स पे कम करने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि आसान नहीं है, ये नहीं कह सकते कि हम ये बच्चों का खेल है, मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और स्लोली हम इस टारगेट को अचीव कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने काफी हद तक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑलरेडी कर लिया। जैसे चाइना का एग्जाम्पल हम दें, चाइना में कुछ क्षेत्रों में काफी हद तक उन्होंने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर लिया। यूरोप के देशों में, जो एक जमाने में लंदन स्मॉग आपने सुना होगा, 1932 में लंदन में ऐसा स्मॉग बना था, किलर स्मॉग, जिसमें कोहरा, फॉग और स्मोक दोनों मिलके स्मॉग, और उसमें कई हजार लोगों की जान गई थी। तो आज अगर आप देखें, उनकी क्वालिटी बेहतरीन है, पानी की, उनकी नदियों की क्वालिटी आप देखिए। लंदन में आप जाइए, थेम्स रिवर को देखिए, नीचे जो पानी की सतह पर पत्थर पड़ा है, उसको वो आप ऊपर से देख सकते हैं, इतना साफ पानी है।
तो जब वो कर सकते हैं तो कोई वजह नहीं कि हम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक जो है, एक तो अवेयरनेस की कमी है, दूसरा देखिए किसी भी समस्या को आप सुलझाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करें, जागरूकता। और हमारे यहाँ जागरूकता इसलिए और ज्यादा जरूरी है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं, एजुकेटेड लोग बहुत कम हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कंपलसरी कर दिया कि एनवायरमेंटल स्टडीज जो है स्कूलों में, स्कूल एजुकेशन में भी पढ़ाया जाएगा, कॉलेज लेवल पर भी और हायर एजुकेशन में भी पढ़ाया जाएगा, ताकि कम से कम पढ़े लिखे व्यक्तियों में इसके बारे में जागरूकता हो। और फिर वो जो हमारी आबादी गांव में रह रही है, देहात में रह रही है, रूरल एरियाज में, उनको हम फिर फर्दर उसको बताएं। तो जब तक सारी पॉपुलेशन को पता नहीं चलेगा ये इश्यूज क्या हैं, तब तक इसमें, क्योंकि ये सब एनवायरमेंटल इश्यूज सारे क्या हैं, ये ऐसे इसमें पब्लिक की भागीदारी चाहिए। सिर्फ सरकार चाहे या एनजीओ चाहे या मिनिस्ट्री चाहे, वो इसको अचीव नहीं कर सकती जब तक पब्लिक पूरी तरह से इसमें योगदान न दे। तो ये आवश्यक है कि सब लोग इसमें अपना योगदान दें, इन चीजों को समझें सबसे पहले, और समझने के बाद फिर उसके सोल्यूशन सजेस्ट करें। जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब दुनिया जो है वो कहते हैं ग्लोबल विलेज बन गई है। तो ऐसा नहीं कि कोई टेक्नोलॉजी अमेरिका में और जापान में मौजूद है वो भारत में नहीं हो, भारत में भी है। लेकिन जरूरत है इन चीजों को समझने की, उसके महत्व को समझने की और लागू करने की। कुछ समस्या हमारे यहाँ जो एनवायरमेंटल लॉज का लागू ना हो पाना, उसकी वजह करप्शन भी एक रीजन है और लैक ऑफ अवेयरनेस भी एक रीजन है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, हमारे यहाँ अभी मैंने हैवी मेटल्स की बात की थी, तो हैवी मेटल्स जो है ग्राउंड वाटर में बहुत सारी जगहों पर नजर आ रहे हैं। तो इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। तो जैसे अलीगढ़ में, आप अलीगढ़ को जानते हैं, अलीगढ़ ताला नगरी कहलाता है। यहाँ पे ताला और चाबी के ऊपर चमक देने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, क्रोम प्लेटिंग, निकल प्लेटिंग वगैरह। तो इंडस्ट्री में ही इस प्लेटिंग बाद से हमें मेटल रिकवरी करनी होती है, इससे पहले कि ये वेस्ट वाटर का हिस्सा बने। क्योंकि होता क्या है कि जब वेस्ट वाटर का हिस्सा बन जाता है तो ये ड्रेन में जाता है, खुली नाली में, फिर वहां से किसी बड़ी नाले में जाता है या सीवर लाइन में, तो फाइनली जो है इसको डंप कर देते हैं किसी तालाब में, नदी में या जमीन पर। तो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। तो इंडस्ट्री में इसको रिकवर कर लेते हैं, और छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज तो अफोर्ड कर पाती हैं ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाती कि ट्रीटमेंट प्लांट बनाए। तो उसके लिए साउथ इंडिया में हमने देखा कि 10 इंडस्ट्रीज ने मिलकर एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बना लेते हैं, सीईटीपी, और वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, खासतौर से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा, यहाँ पर समस्या ज्यादा है, अधिक है। क्योंकि अलीगढ़ की मैं अगर बात करूं तो हमने खुद देखा है कई जगहों पर, जैसे आप अलीगढ़ में चले जाएं, शहर में अपर फोर्ट, जयगंज, शाहजमाल वगैरह वगैरह, तो हर घर में एक छोटी ताले का उद्योग चल रहा है। वहां पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हो रही है, और मेटल प्लेटिंग बात को वो ओपन नाली में बहा रहे हैं। और उससे भी एक स्टेज आगे बढ़कर हमने देखा, जो जैसे शैलो हैंड पंप की बोरिंग होती है उस तरह की बोरिंग करवा रखी है, और वो उसको ग्राउंड में डाल रहे हैं। यानी कि वेस्ट वाटर लेडन विद लेस्ड विद हैवी मेटल्स, इट इज बीइंग डंप्ड इनटू ग्राउंड। तो अब आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर हम ग्राउंड में डालेंगे इसको, ये क्रिमिनल एक्ट है, इसके लिए कानून में समुचित प्रावधान है। और आपको बता दूं कि भारत में पानी को और हवा को बचाने के लिए बहुत पहले से कानून बने हुए, प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1980, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2000, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, सब कानून बने हुए हैं। और सजा का प्रावधान भी है, जुर्माने का प्रावधान भी है, इंडस्ट्री को सील करने का, इसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है। हर राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बने हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कानून पे इनको सजा नहीं मिल पा रही इन लोगों को जो इसको तोड़ रहे हैं। अब जैसे जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इसमें पकड़े जाने पर, पहली बार पकड़े जाने पर 50,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल है, और मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। तो हमने आरटीआई के जरिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए, अलीगढ़ की जो कोर्ट है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो ऑफिस है, वहां पर पूछा कि भाई ये बताइए कितने लोग हैं जिन्हें पिछले 10 वर्ष में, जिनके ऊपर एफआईआर कराई गई पर्यावरण को खराब करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, कितने व्यक्ति ऐसे जिनको सजा मिली। तो उन्होंने बताया कि 10 साल में सिर्फ 312 एफआईआर हुई हैं, उसमें भी बहुत कम लोग पकड़े गए हैं, और जो पकड़े भी गए हैं उसमें विवेचना के दौरान, सबूतों के अभाव में,
2 हियरिंग में, 4 हियरिंग में उनको छोड़ दिया गया, यानी कि सजा किसी एक भी व्यक्ति को नहीं मिली। तो जब जो पोल्यूट करने वाला व्यक्ति है, जब उसको ये पता चलेगा कि कोई, मैं कुछ भी कर लूं कोई सजा तो मिलनी नहीं है मुझे, तो फिर वो रुकेगा क्यों? वो क्यों रुकेगा इस काम को करने से? तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी है कि ना टेक्नोलॉजी की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना अधिकारियों की कमी है, और ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कमी है। अक्षरशः पालन नहीं हो पा रहा है जमीनी सतह पर। इसके लिए भ्रष्टाचार एक वजह है, और उसकी इंपॉर्टेंस में समझना, जागरूकता ना होना, ये अलग दूसरी वजह है। इस वजह से प्रॉब्लम। ठीक है, और कोई पूछे भाई? एनीबडी एल्स? और कोई सवाल? नमस्ते सर। नमस्ते। मैं दीपक, कुबा पीजी कॉलेज आजमगढ़ सर, एंशिएंट हिस्ट्री सर। जी। सर मेरा प्रश्न ये है कि सर जैसे विकास, जो सतत विकास है, यह अविकसित या अल्प विकसित देशों के साथ कितना न्याय है? जैसे विकसित देशों ने पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन करके विकास कर लिया, अब नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, तो जो अविकसित या अल्प विकसित, कम विकसित देश है, उनके साथ सर ये कहाँ तक न्याय है सतत विकास? हाँ, देखिए दीपक जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, बहुत ही पर्टिनेंट सवाल पूछा। ये समस्या जो है दीपक जी 1990 से रही है, जब पहली अर्थ समिट आयोजित की गई ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में, जहां पर विकसित देशों ने ये दबाव डाला विकासशील देशों के ऊपर कि भाई एक कॉमन स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कि कितना कितना कार्बन इमिशंस या कार्बन को हम घटाएंगे अपने अपने देशों में, बराबर बराबर बांट लीजिए अपने देश के एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इस पे विकासशील देशों ने, भारत जैसे देशों ने इस पे ऐतराज उठाया। उन्होंने कहा जो बात आप कह रहे हैं कि भाई आप तो अपने यहाँ डेवलपमेंट तो आपके हो चुका, आप तो विकसित देश हैं, और आपने पर्यावरण को भी जो है बहुत ज्यादा खराब कर लिया, और अब भी आप कर रहे हैं। और आप अब हम, जब हमारे यहाँ विकास हो रहा है, तो आप हमसे ये चाह रहे हैं कि हम अपना विकास भी रोक दें, और हम जो है वो उतना ही कंट्रीब्यूट करें कार्बन इमिशंस को कट डाउन करें। तो ये संभव नहीं है। तो इसीलिए भारत जैसे विकासशील देशों ने इन ट्रीटीज पर साइन करने से मना कर दिया, और ये समस्या चलती रही फिर सालों तक, जबकि कोपेनहेगन में, डेनमार्क में, ये पहली बार जो है वो इन विकसित देशों ने ये समझा, उनकी समझ में आ गई बात कि ये जब तक समस्या नहीं सुलझ पाएगी, तब तक हम इसका जो है वो जिम्मेदारी अपने ऊपर, भागीदारी अपनी पूरी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है अपने कार्बन इमिशन ज्यादा करेंगे, आप छोटे देश हैं, आप विकासशील देश हैं, आप कम करिए, और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो टेक्नोलॉजी भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और जिन देशों के पास, जैसे अफ्रीका के देश हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं, एशिया के देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनके पास पैसा भी नहीं है इन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का, तो वो पैसा हम इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, उसके द्वारा आपको दिलवाएंगे, ताकि आप भी अपने यहाँ वो चीजें लागू कर सके। तब भारत ने भी और दूसरे देशों ने भी, 174 देशों ने कोपेनहेगन में ट्रीटी के ऊपर साइन किया, और अपने अपने कार्बन इमिशन जिस पे हम काम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, कि टारगेट सेट किए गए हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि कितना कितना टारगेट 10 साल, 20 साल और 50 साल के वर्ष में हमें करना है, उस पर काम चल रहा है। तो अब जो है उनकी समझ में बात आई है, डेवलप कंट्रीज की बात। अब हाँ भैया, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ सर, सर नमस्कार। सर मैं मोहम्मद आमिर बात कर रहा हूँ। एक मिनट एक एक करके। हाँ, मोहम्मद आमिर बात पहले पूछ ले जी सर, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, जब हम इन्वायरमेंटल लॉ के लॉज को देखते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो या वो फॉरेस्ट एक्ट हो, उसकी एनालॉजी इन्वायरमेंट पे बेस नहीं है सर। ऐसा क्यों महसूस होता है सर? जब हम फॉरेस्ट एक्ट कानून देखते हैं और उसकी एनालॉजी को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि टैक्स लॉ हम पढ़ रहे हैं। और जब हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते हैं, 1986, वन ऑफ द प्रोमिनेंट लॉ ऑफ एनवायरमेंट जूरिस्प्रूडेंस, तो ऐसा लगता है कि साहब हम ये इन्वायरमेंट बेसिक। और अभी मैं सर, अभी लास्ट सैटरडे एक सीनियर लॉ ऑफिसर थे पोल्यूशन बोर्ड के, मैं उनसे बात कर रहा था, तो बहुत हद तक मेरी बात से वो मुत्तफिक भी थे कि नहीं आप सही कह रहे हैं सर। इसको कैसे ओवरकम किया जाए? जी जी, मोहम्मद आमिर साहब ने जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट और इशू रेज किया है, जो समस्या हमारे यहाँ रही है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई नया कानून बनाया जाता है, कुछ कानून तो ऐसे हैं जो कि संविधान निर्माताओं ने ही बना दिए थे, तो वो तो काफी परफेक्शन के साथ चीजें बनी हुई हैं
क्योंकि वो लोग बहुत जी एक्सपीरियंस सर, भी थे। मैं बहुत माजरत के साथ आपको रोक रहा हूँ सर। सर, अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स भी देखें, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो सर उसमें प्रोफेसर्स का बहुत मतलब सही ओपिनियन है, कहा कि साहब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लाइंडनेस थी, हमने एनवायरनमेंट की तरफ देखा ही नहीं। सर हम 76 में 1976 में सर हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व की बात कर रहे हैं। सर उस टाइम भी हम अनअवेयर थे विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और जब हमने 42वां संशोधन किया, जब अमेंडमेंट किया, तब हमने एनवायरनमेंट की तरफ देखना शुरू किया। जो सर मैंने अब तक विद माय लिटिल नॉलेज विद आई एम पुटिंग ओवर हियर, सॉरी सर अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, बट व्हाट आई हैव रेड आई एम जस्ट स्टेटिंग बिफोर यू सर। नहीं, ये बात सही है, काफी हद तक सही है जो आमिर साहब आप बात कह रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि देखिए, जब कोई देश बहुत सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहता है, तो उस वक्त उसके पास, पब्लिक के पास या लोगों के पास, इवन पढ़े लिखे लोगों के पास, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो किसी तरह आजाद हो जाए। और जब आजाद हो गए तो अब सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई संविधान का निर्माण करें, या जो है हम जो अपनी संस्थाएं हैं उनको एस्टैब्लिश करें। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, खाने के लिए अनाज की भी कमी थी, तो अपनी पॉपुलेशन को अनाज प्रोवाइड करें। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे आप मान लीजिए हम कभी बीमार हो जाएं, तो बीमार हो जाते हैं तो हमारे घर में कोई भी हमारा घर का आदमी कहता है कि भाई खाना खा लीजिए, तो हम कहते हैं कि हमारा मन नहीं कर रहा खाने का। उस समय जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हम किसी तरह ठीक हो जाएं। तो ये इंसान की ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो उस चीज को पहले एड्रेस करने की कोशिश करता है जो बड़ा इश्यू होता है सामने। तो उनके जो संविधान निर्माताओं के सामने जो आप कह रहे हैं ना, एक ब्लैंक जो था, उसका रीजन ये था कि उस वक्त देश का निर्माण जो है हो रहा था, और वो उनके पास लार्जर इश्यूज थे। दूसरी चीज ये थी कि पर्यावरण उस वक्त इतना ज्यादा पोल्यूटेड नहीं था, तो वो इश्यूज ज्यादा सामने नजर आ भी नहीं रहे थे ग्लोबल लेवल पर, तो इसलिए इतना ख्याल नहीं किया। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि साहब पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल्स का इस्तेमाल हुआ हरित क्रांति में, तो उनको ये नहीं बताया गया कि आपको इस्तेमाल करना तो है पेस्टिसाइड्स, लेकिन कितनी क्वांटिटी में करना है। अब उन्होंने अंधाधुंध कर रहे हैं उसका इस्तेमाल इनडिस्क्रिमिनेट, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूट हो गई और ये सारे केमिकल जो है ग्राउंड वाटर का हिस्सा भी बन गए, सरफेस वाटर। तो ये समस्या रही। और आज भी आप सही कह रहे हैं कि जब एनवायरमेंटल लॉज को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई टैक्स का कानून पढ़ रहे हैं। तो इसमें उन एक्सपर्ट्स को शामिल नहीं किया गया है जो कि एनवायरमेंट को समझते हैं या उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो EIA एक्सपर्ट्स हैं या एनवायरमेंट के एक्सपर्ट्स हैं। तो ये जरूरत है वक्त की, बहुत अब ये मांग बहुत दिनों से हो रही है कि इन लॉज को रिवाइज किया जाए और ऐसे एक्सपर्ट्स को इसमें रिवीजन में बिठाया जाए अमेंडमेंट में, जो कि एनवायरमेंट के, पर्यावरण के एक्सपर्ट्स हों, ताकि इनको एनवायरमेंट फ्रेंडली लॉज ऐसे बनाए जाएं जिसमें इम्प्लीमेंटेशन आसान हो और लोग जो है पर्यावरण को पोल्यूट करने से थोड़ा ज्यादा डरें और इसको हम आसानी से इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो आपकी बात सही है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि है ये प्रॉब्लम और कमी है। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। जी, एनी अदर कोई? हाँ, सुरेश कुमार पूछना चाह रहे थे कुछ। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं सुरेश प्रजापति, शाहजहां PG कॉलेज गाजीपुर से। मेरा सवाल सर है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आजकल, जैसे पुराने जो खराब हो चुके हैं, रेडियो, टीवी या CD DVD प्लेयर, मोबाइल वगैरह, तो इनका निपटारा कैसे किया जा सकता है? मुझे लगता है कि ये पर्यावरण के लिए बहुत सबसे ज़्यादा खतरा इस समय हो गए हैं, तो कैसे इनका निपटारा किया जा सकता है? देखिए, सुरेश कुमार प्रजापति जी ने जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल जो है उठाया है, जो कि सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट एक अलग से एक बहुत बड़ा विषय है। और जैसे मैंने बताया कि सॉलिड वेस्ट जनरेशन इतना ज़्यादा अब हमारे बड़े शहरों में हो रहा है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और हर घर में हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ सॉलिड वेस्ट जनरेट कर रहा है पर डे। तो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ जो है वो शहर के बाहर बन रहे हैं। अब इनको डिस्पोज करना, इनको मैनेज करना एक बहुत बड़ी समस्या का हिस्सा बनता जा रहा है। जिस वेस्ट की बात सुरेश कुमार प्रजापति जी कर रहे हैं वो ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाता है, जो गैजेट्स का हम इस्तेमाल आजकल जमाने में कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बात की मोबाइल फोन की, लैपटॉप की, रेडियो की, टीवी की, और इस तरह की जो जितनी भी इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं, जब ये अपनी यूजफुल लाइफ कंप्लीट कर चुके होते हैं तो इसको उठा के हम जो है फेंक देते हैं। तो ये सॉलिड वेस्ट का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ये डंपिंग साइट पर या लैंडफिल में पहुंच जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे मटेरियल से मिल करके ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसमें ग्लास यानी कि शीशा होता है,
इसमें मेटल्स होते हैं, इसमें प्लास्टिक होती है, इसमें रबर होती है, इसमें सेमीकंडक्टर्स, चिप्स होते हैं, और हर तरह का मटेरियल जो है इसमें मौजूद होता है। तो इसको डिस्पोज करना, इसको ट्रीट करना, और इसके ज्यादातर कंपोनेंट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो एज अ यूनिट अगर आपने इसको जो है मिट्टी में दबा दिया तो कोई फायदा नहीं होगा, वो तो अपनी जगह मौजूद रहेगा। तो इसको जो है पहले आपको रिसाइकिल करने के लिए इसको अलग अलग करना पड़ता है, इसके सारे कंपोनेंट्स को, पार्ट्स को सेग्रीगेट करना पड़ता है, और सेग्रीगेट करने के बाद जो कंपोनेंट जैसा है उसको वहां भेजना। मान लीजिए जो प्लास्टिक है या रबर है या दूसरा मटेरियल जो रिसाइकिल हो सकता है, या अगर मान लीजिए मेटल है तो उसको मेल्ट करके रिसाइकिल करके कोई दूसरा यूजफुल आर्टिकल उससे हम बना लेते हैं। और जिसको रिसाइकिल करना संभव नहीं है उसको जो है हम सॉलिड वेस्ट डंपिंग साइट पे भेज देते हैं, जो कि लैंडफिल का हिस्सा बन जाती है। अब लैंडफिल में समस्या ये आती है कि लैंडफिल में हमने कूड़ा डाल दिया, मान लीजिए कोई नेचुरल डिप्रेशन है, गड्ढा है, उसमें आपने कूड़ा डाल दिया शहर से बाहर, लेकिन उसमें हर तरह का वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल भी वेस्ट होता है। तो उसमें बर्ड्स अट्रैक्ट हो रही हैं, चिड़िया आ रही हैं, बड़ी बड़ी चील कौवे आ रहे हैं, उस जो उसमें खाने का चीज है उस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसमें से स्मेल निकल रही है, मीथेन गैस रिलीज हो रही है, जो कि शहर से बाहर लोग आ रहे हैं उनको बहुत ही डिसप्लीजिंग साइट नजर आ रही है, और बहुत ही स्मेल करनी पड़ रहा है, बैड स्मेल को सूंघना पड़ रहा है। तो ये अनडिजायरेबल है। तो इसके लिए सैनिटरी लैंडफिल बनाई जाती है, और सैनिटरी लैंडफिल में सबसे नीचे हम एक हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन लाइनर डालते हैं, एचडीपी लाइनिंग। उसके ऊपर एक सॉइल की लेयर, उसके ऊपर एक सॉलिड वेस्ट की लेयर, फिर सॉइल, ऑल्टरनेट लेयर्स लगाते हैं, और सबसे ऊपर जो है सॉइल की लेयर डाल के उसकी लैंडस्केपिंग करते हैं, और लैंडस्केपिंग के ऊपर फिर उस पर कोई घास या जो है वो फूलों वाले पौधे लगा देते हैं, जहाँ पर गार्डन का लुक आता है। या कहीं कहीं पर जो है वो कई जगह पर दुनिया में ऐसी लैंडफिल साइट्स हैं जिसपे गोल्फ कोर्स तक बना दिया गया है, तो देखने में बहुत एस्थेटिकली अच्छा लगता है और कोई बैड स्मेल नहीं निकलती उसमें से। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है लैंडफिल के साथ कि उसके अंदर जब बारिश का पानी जाता है तो जो केमिकल्स मौजूद होते हैं वो रिएक्ट करके एक लिक्विड बन जाता है, जो बहुत ही हार्मफुल और पॉइजनस लिक्विड होता है, जिसको बोलते हैं लीचेट। नाउ दिस लीचेट, इसीलिए हमने जो सबसे पहले आपको बताया कि सबसे नीचे एचडीपी लाइनिंग डालते हैं, उसका पर्पस यही है। अगर वो लाइनिंग ना डालें हम तो ये कंटेमिनेट करेगा, ग्राउंड वाटर को चला जाएगा लीचेट। तो वहां से हम एक अंडर ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, और जो भी लीचेट बनता है उसको पाइप के जरिए उस लैंडफिल साइट से बाहर निकाल के फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसको भेजते हैं और ट्रीट कराते हैं। ये अब इसके बाद जो है जो दूसरा सॉलिड वेस्ट का कंपोनेंट बच जाता है जो बायोडिग्रेडेबल है, उसको बैक्टीरिया के माध्यम से कंपोस्टिंग कराते हैं, इसको कहते हैं बैक्टीरियल कंपोस्टिंग। और जो अर्थवर्म्स का नाम सुना होगा आपने, तो अर्थवर्म से जो कंपोस्टिंग कराते हैं उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। इससे जो कंपोस्ट तैयार होती है, आपने सुना होगा नाम वर्मी कंपोस्ट या केंचुए की खाद। इस कंपोस्ट का इस्तेमाल एज अ बायो मैन्योर या बायो फर्टिलाइजर खेतों में भी किया जा सकता है, अपने घर में भी आप जो है पौधों को ग्रो करने के लिए कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये एक इसका हिस्सा होता है। उसके अलावा कुछ सॉलिड वेस्ट का हिस्सा ऐसा होता है जो हैजार्डस कैटेगरी में होता है, बायोमेडिकल है, इसमें लाइव बैक्टीरिया, वायरस है या कोई खतरनाक केमिकल पदार्थ है, उसको आप ऐसे ओपनली डिस्चार्ज या डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। तो उसके लिए 2-4 टेक्निक होती है। एक तो है, आपने सुना होगा नाम इंसिनरेशन। जैसे बड़े बड़े अस्पताल हैं वहां पर इंसिनरेटर होता है। इंसिनरेटर इज अ मशीन इन विच वी बर्न द सॉलिड वेस्ट अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वेरी लिटिल एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड। तो जैसे हमारे यहाँ भी अलीगढ़ में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा इंसिनरेटर लगा हुआ है, जहां पर इस हॉस्पिटल में प्रोड्यूस बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट किया जा रहा है। जैविक कचरा इसको आप बोलते हैं, जिसका विस्तारण इस इंसिनरेटर में किया जा रहा है। इसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं। पायरोलिसिस एक टेक्निक है, गैसिफिकेशन एक टेक्निक है। देयर आर मेनी टेक्निक्स वेयर वी कैन treat and make the biomedical or hazardous waste innoxious, ineffective. So these are the different techniques which can be used for disposal of solid waste. I hope I have answered your question. जी और कोई? सर, हाँ शैलेश जी। myself शैलेश कुमार प्रजापति, सहायक आचार्य समाचार। शैलेश जी पूछे पहले। जी सर, मेरा नाम शैलेश कुमार प्रजापति है, मैं सोशियोलॉजी का शिक्षक हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि कार्बन क्रेडिट और ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है,
कहीं न कहीं ऐसा साफ साफ दिखता है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जिनका विकास पहले हो चुका है, उन्होंने एक अपना दूसरा रास्ता तलाश लिया अपने आप को बचाने के लिए। और इसके माध्यम से जैसे जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं, उनके ऊपर भार डाला जा रहा है। पैसा तो सब कुछ नहीं होता, पैसा तो दे के बच जाएँगे, लेकिन फाइनली नुकसान तो हम ही लोग का हो रहा है। तो इस पे कुछ आपका व्यू जानना चाह रहे थे सर। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज। कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, शैलेश जी ने एक सवाल पूछा है जी। कि ये कार्बन क्रेडिट्स की जो पॉलिसी है, जो विकसित देशों ने जो अडॉप्ट की है, कि भाई इसमें क्या होता है, जिन लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए बता दूं। कार्बन क्रेडिट्स में ये होता है कि जो देश, हर देश का एक टारगेट है कि इतना 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 कार्बन एमिशन हमें जो है एक वर्ष में करना है। तो जिनके सिस्टम ज़्यादा एडवांस लगे हुए हैं, जो उससे कम पोल्यूट कर रहे हैं, वो उस डिफरेंस को जो है कार्बन क्रेडिट के फॉर्म में गरीब देशों को बेच देते हैं और कहते हैं कि अब आप इसके बदले में पोल्यूट कर लीजिए और पैसा हमें दे दीजिए। एक तरीके से वो पोल्यूशन राइट्स बेच रहे हैं। तो यानी कि पोल्यूशन तो जितना टारगेट सेट किया गया उतना ही हो रहा है, लेकिन वो क्योंकि कम पोल्यूट कर रहे हैं तो इसलिए वो फायदा उठा। तो इसमें विकसित और विकासशील देश की बात नहीं, इसमें उस देश की बात है जो पोल्यूट कम कर रहा है। तो जो कम पोल्यूट करेगा तो उसके बदले में पैसे ले लेगा और उसके कार्बन क्रेडिट के बदले। देखिए, इसका मेन मकसद जो कार्बन क्रेडिट का है वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। इसका मेन मकसद ये है कि ओवरऑल जो वर्ल्ड टारगेट सेट किया गया टोटल, वो जो है वो एक्सप्लॉयट नहीं होना चाहिए, वो इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चाहे वो अपना करे जितना उसको अलाउड है, चाहे वो किसी दूसरे से पैसा दे के खरीद ले और उन दोनों को मिलाकर करे। तो वर्ल्ड का जो टोटल टारगेट है वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये इसका मतलब। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। मैं डॉक्टर कमिंदर, कुबा पीजी कॉलेज दरियापुर नेवादा आजमगढ़ से। जी। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे वर्तमान समय में सतत विकास का सर बात किया जाता है, लेकिन जनसंख्या भी सर तेजी से बढ़ रही है और संसाधनों का उपयोग भी हो रहा है उसी अनुपात में, और गाड़ी मोटर भी तेजी से के साथ जो है कि बढ़ रहे हैं। तो सतत विकास कैसे फॉलो हो पाएगा इतनी परिस्थितियों में? देखिए, एक कविंदर जी ने एक सवाल पूछा कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की जो बात कर रहे हैं, तो वो कैसे संभव है जबकि हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और हम इस आबादी को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है हम ये कह रहे हैं कि साहब हम पोल्यूशन को भी कम करना चाहते हैं, गाड़ियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो पब्लिक के ऊपर, अपनी जनसंख्या के ऊपर कोई भी चीज थोप नहीं सकती, जबरदस्ती नहीं कर सकती। जैसे चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड लॉ एक जमाने में लाए थे, एक कंपलसरी कर दिया कि साहब एक ही बच्चा जो है वो एक फैमिली में हो सकता है। तो वहां उन्होंने कंपलसरीली वो चीज अचीव कर ली, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज संभव नहीं है। लेकिन पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करना एक बात है, पब्लिक को समझाना एक बात है, उसकी इंपॉर्टेंस बताना एक बात है कि भाई ये क्यों जरूरी है। इंडिविजुअल लेवल पर भी अगर आप फैमिली जो है वो एक लिमिटेड रखें तो उसके बेनिफिट्स हैं, और कम्युनिटी लेवल पर और पूरे समाज के लेवल पर और देश के लेवल पर भी उसकी इंपॉर्टेंस है। जो रिसोर्सेज, जाहिर रिसोर्सेज तो उतने ही हैं जितने पहले थे और आबादी बढ़ती जा रही है। जहां तक कार्स की बात है, जाहिर है टेक्नोलॉजी को भी हम बढ़ने से नहीं रोक सकते। जाहिर है शहरों में, कि आप तो गाँव में भी जो है वो छोटे छोटे गाँव में 200-200 कार मौजूद हैं, हर जगह लोग कार चला रहे हैं, व्हीकल्स मौजूद हैं। तो पॉल्यूशन इसकी वजह से बढ़ रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड जो यूज किया गया वो इसीलिए किया गया कि हम सतत विकास का मतलब यही कि जो दूसरा जो चीजें हो रही हैं उसको हम रोक नहीं सकते, उसको हम कोशिश कर सकते हैं कंट्रोल करने की, लेकिन हम अपना टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन by using the technology, by using certain techniques and methods, by realizing our own responsibility as a citizen। तो इसमें समाज का, इसमें जो इंडिविजुअल्स का, इसमें सरकार का, इसमें संस्थाओं का, सबका योगदान जो है जब होता है, तब ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे चीज, हाँ, ये सतत विकास जिसको हम कह रहे हैं, ये कागज पर से असली जीवन में उतर कर आता है और संभव हो पाता है। अदरवाइज
ये सिर्फ एक रिटन टर्म ना बन करके रह जाए और इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और पालन और हम इसको अचीव कर पाए, उसके लिए जरूरी है। और चाइना का रोल मॉडल हमारे लिए सामने मौजूद है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम एग्जैक्टली वही सब चीजें फॉलो करें जो चाइना ने की, लेकिन अपनी कंडीशंस को देखते हुए, अपनी लिमिटेशंस को देखते हुए, भारतीय कंडीशंस के हिसाब से हम इसको चीजों को अडॉप्ट करें, तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव कर सकते हैं। और हमारे वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं, हमारी संस्थाएं, जो हमारी सरकार है और जो दूसरे पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब इसमें लगे हुए कैसे इसको अचीव करें। तो अगर हम सच्ची नीयत से कोशिश करें और अपनी हैबिट्स को चेंज करें, बिहेवियर में चेंज लाएं, तो कोई चीज नामुमकिन नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, हम सर्टेनली इसको हासिल अचीव कर सकते हैं। थैंक ठीक यू है सर। कविंदर जी? जी जी, थैंक यू Good सर। afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Sir, I'm Prachi Singh. I'm an assistant professor of English at Baikunthi Devi Kanya Mahavidyalaya, Agra. Sir, I live in Agra, and what I usually see here is that Yamuna River is depleting day by day. Sir, due to the excessive use of water, or we can say that due to the dumping of toxic remains into it. Sir, my question is that since Yamuna is not only in Agra, it is also in Bagpat, in Delhi, Noida, and at so many places. Sir, so what is it that this depletion, this pollution is happening only in Agra at a larger scale? Actually, what happens is that very good question asked by Dr. Prachi Singh. All these rivers, especially Ganga and Yamuna, they are perennial rivers. Perennial river is one which gets its water source from the glacier. So Yes. the Yamuna is getting the water from Yamunotri Glacier, and it is originating in the hilly areas, and it as it moves from the hills through the plains of Uttar Pradesh and then finally comes up to Agra. There are several industries which are continuously dumping their wastewater into the Yamuna and Ganga. There are several industries like sugar mills, there are paper industries, there are leather industries, all types of industries. And there are wastewater from the municipal sources also. Now this wastewater contains a large volume of the solid wastes in them. They also have sediments in them. The river carries the sediments from the mountains, and more sediments are being dumped into the wastewater from the industrial municipal source. So what happens is that when the river reaches the plain area, the velocity of water reduces due to the natural slope. In hills, the slope is more, so the river is moving fast. In the plains, the slope is less, or even it is a plain area, so the velocity of water is quite low. So what happens is that the sediments began to deposit there, and with the deposit of sediments, slowly and slowly, either the river shifts its course, as we have seen in the case of many rivers, the river in India which has shifted its course by million miles of kilometers, many miles and kilometers, Kosi River. But even in Yamuna or Ganga, if you see at various places where the ghats are existing on the bank of big cities, like in Delhi or in Mathura or in Agra, for Yamuna and for Ganga, you can see at various places like in Aligarh, it's passing through Aligarh, in Sadhu Ashram, and it is passing through various other places in Banaras, in Kanpur. So again, a lot of industrial waste being dumped, which is responsible for, say, increasing the sediment deposit, and the water is being slowly reduced in the river. Ultimately, it becomes extinct. Now, there are several, you'll be surprised to know there are several rivers which were existing earlier in India, but now they have completely vanished. They have become extinct. जैसे राजस्थान में आपने सुना होगा रूपरल रिवर के बारे में, Yes, sir. जो कि दोबारा से रिक्रिएट की गई है। आपने नाम सुना होगा राजेंद्र सिंह जी का, ही इज कॉल्ड द वाटरमैन ऑफ इंडिया। इन्होंने जो है इस रिवर को जो है वो वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर दोबारा से रिवाइव किया है, एंड ही इज कॉल्ड द वाटरमैन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ दिस। इनको, इनकी सेवाओं को देखते हुए इनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सब जितने भी पर्यावरण से जुड़े हुए इश्यूज हैं, ऑल दीज इश्यूज दे हैव टू बी डेल्ट अप by people who have got experience and knowledge, not only scientific knowledge, but even a person living in a village or a rural area, they may be having certain knowledge
which may be good for the environment. So we can use that knowledge also. So that is the problem, that due to which this river is becoming small, and there is a possibility it may completely dry up. Several rivers have already dried up at various places. Yes, sir. Okay, thank you all very much for your convenient and patient hearing. Sir, I think the time is over now. Thank you, sir. If you have more Thank you, questions, sir. Thank you so much. thank you, sir. Thank you, sir. okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. अभी तक प्रेजेंटेशन के लिए कोई टॉपिक नहीं आया है। कब तक? 1-2 दिन बोला था सर ने। कुछ आइडिया किसी ने बात करी थी? वेट किया जाए कुछ दिन और। Today you will get all the topics, don't worry. ओके सर, थैंक यू सर।